Now let's do VE. In VE, we had completed till chapter number 3, being courteous, and we had written question answer and objective questions also, and I hope all of you had completed in your notebook. Now we are going to start the 4th chapter, but before starting the 4th chapter, one page is there on page number 22, that is living well. Now for this we will read this page when you don't know what to do. अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, उस समय आप क्या करेंगे? Even though you are a big girl or boy now, you cannot do everything on your own. अभी आप बड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी हर एक काम, हर एक चीज आप अपने आप नहीं कर सकते. When you cannot do something, don't cry, don't sulk and don't be angry. अगर आप कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसी चीज है जो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको रोना नहीं है, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करना है और ना ही सैड होना है या तो उदास हो जाना है. तो हम क्या कर सकते हैं? When you need help, just ask for it. अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप उसके लिए पूछो. Say, please help me father, I don't know what to do. आप अपने पापा से बोल सकते हो कि प्लीज हेल्प मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं पता है, सो प्लीज हेल्प मी. Then you can tell to your miss also, means your ma'am also. Say, please help me miss, I don't understand this. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी मिस को यानी कि अपनी मैम को, अपने टीचर को बोल सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. You can ask, I don't understand this. Then say, please help me Riya, I don't know how to tie my shoelace. You can tell to your sister also that you don't know how to tie the shoelace. आपको shoelace बांधना नहीं आता है तो आप अपनी सिस्टर को बोल सकते हैं कि I don't know how to tie my shoelaces. Then say, please help me auntie, I am afraid to cross the road on my own. अगर रोड क्रॉस करने में आपको डर लगता है तो you can tell to anyone, those who are there on the road, that please help me, I am afraid to cross the road on my own. So these are the sentences that you can speak in English as well. If you need any help, you can tell to other family members or friends, and you can ask for help them also. So you have to tell something, whatever you are afraid of. So you can say like this. This is the conversation practice also, and you can do like this. So you don't have to worry about anything. अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी से भी पूछ सकते हो. और कैसे पूछ सकते हो? So these are the some examples like that you can ask. Now we are going to start the next chapter, chapter number 4, being a. This is the chapter number 4, being a good neighbor. First of all, we will read this. Let's listen. It is dark and rainy. The doorbell rings. It is your friend who lives next door. He is worried because his parents have not come home from work.
रात का समय था और बारिश भी हो रही थी। उसी समय डोरबेल बजती है और वहां पे आपका फ्रेंड आता है जो आपके बाजू में रहता है, और वो इसीलिए परेशान था क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी उसके घर वापस नहीं आए थे, ऑफिस से अपने घर अभी वापस नहीं आए थे। You say, don't worry, uncle and auntie will come soon, will home soon. Till then, you can stay here and play with me. Your mother is also very caring. She brings hot soup and snacks for both of you. You have helped your neighbor. आपका फ्रेंड आया था आपके घर, तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक अंकल और आंटी नहीं आ जाते आप मेरे घर पे बैठो, हम यहीं पर साथ में बैठेंगे और खेलेंगे। फिर आपकी मम्मा ने जो बहुत केयरिंग है, तो उन्होंने आप दोनों के लिए हॉट सूप और कुछ स्नैक्स लेके आए और आप दोनों ने बैठ के वो साथ में खाया। तो यू हैव हेल्प योर नेबर, मतलब आपने अपने नेबर की हेल्प की। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प आवर नेबर्स व्हेन दे आर इन ट्रबल। हमें हमेशा अपने नेबर्स की मदद करनी चाहिए जबकि वो कुछ प्रॉब्लम में हो और उनको हमारी हेल्प की जरूरत हो। बट व्हाट अबाउट दोज हु नीड आवर हेल्प but do not live next door? Can we think of them as neighbor too? Yes, we can, as this story teaches us. जो नेबर हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे एग्जैक्टली घर के बाजू में रहते हैं, उनको तो हम कई बार हेल्प कर सकते हैं और कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे घर से थोड़े दूर रहते हैं, तो क्या उनको अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमें उनके बारे में कभी सोचा है कि हम उनको हेल्प करते हैं या हम कर सकते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प देम। हाँ, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, उसी बारे में अब ये स्टोरी है। सो दिस इज द चैप्टर अबाउट द हेल्पिंग अ नेबर और बीइंग अ गुड नेबर। सो नाउ वी विल सी द स्टोरी रिंचन्स नेबर। One winter, it snowed very heavily in Ladakh. Everything was buried under the snow. एक दिन जब विंटर सीजन में बहुत हेवी स्नोफॉल हुआ था, यू नो व्हाट इज स्नोफॉल? स्नोफॉल मतलब जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, तो लद्दाख में वैसे स्नो की बारिश होती है। सो वन विंटर इट स्नोड वेरी हेवीली इन लद्दाख। लद्दाख में एक दिन बहुत सारा बर्फ गिरा। एवरीथिंग वॉज बरीड अंडर स्नो। मोस्टली ज्यादातर चीजें, ज्यादातर मकान, ज्यादातर घर, ज्यादातर लोग वो बर्फ के नीचे दब गए थे। नॉट अ सिंगल पर्सन कुड बी सीन आउटसाइड। बाहर रास्ते पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई एक भी आदमी वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। वन नाइट एज रिंचन एंड her family were sitting down for dinner, there was a knock on the door. एक रात को जब रिंचन और उसकी फैमिली डिनर यानी कि रात को खाना खाने बैठे, उसी समय दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। A tired traveler had come looking for shelter. एक थका हुआ मुसाफिर था जो उन लोगों के पास मदद के लिए आया। The family invited him to join them for dinner. तो रिंचन की फैमिली ने उनको
डिनर के लिए इनवाइट किया, उनको बोला कि चलो आप मेरे साथ खाना खा लो. As he ate, the traveler said, "How lucky you are! At, at the last house where I stopped for help, there was no food at all." और फिर खाना खाने के बाद वो जो ट्रैवलर था उसने बोला कि आप लोग बहुत लकी हो कि क्योंकि मैं यहाँ से पहले जो लास्ट घर पे गया था तब वहां पे कुछ भी खाने की चीज नहीं थी, वहां पर कुछ भी खाना नहीं था. The yaks had destroyed the vegetables, and now we will go to the next page. The yaks had destroyed the vegetables and barley in the field. The family had put away very little food for winter. Even the children went to bed hungry. इससे पहले वो जो घर में गया था वहां पर पूरा जो फूड था, जो वेजिटेबल्स था, वो सारा याक ने खराब कर दिया था. जो उनके खेत था, खेत में वो याक ने पूरा खराब कर दिया था और वो फैमिली के पास बहुत ही थोड़ा सा खाना बचा था और उनके जो बच्चे थे वो बिना खाए ही सो गए थे. रिंचन्स मदर वॉज वरीड. What will they eat? She asked. तो ये सुन के रिंचन की मदर को लगा, उसको उनके लिए चिंता हुई और उसने पूछा कि तो अब वो क्या खाएंगे. The market doesn't open when it snows and the shops have no fresh food. Rinchan's father and the traveler nodded. फिर रिंचन की मदर ने बोला कि अभी तो कोई मार्केट भी खुला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल चालू है और जो भी शॉप अगर खुली भी होगी तो वहां पर फ्रेश फूड नहीं होगा. तो रिंचन के फादर और जो ट्रैवलर आया था वो दोनों ने बोला कि हाँ ये बात सही है कि अभी कोई भी शॉप भी नहीं खुली होगी और कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा. See, we will continue this story in the next period. Till now, whatever I explain you and whatever I read the story, you have to read that story again on page number 24 and 25, and we will continue this story in the next period. After listening the neighbor's condition, whatever the traveler had said, what will do रिचन्स मदर, रिचन्स की मम्मा अब क्या करेगी जो उनके नेबर में जो है उनके पास फूड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए उसकी मम्मा क्या करेगी वो जानने के लिए अब हम नेक्स्ट पीरियड में आगे की स्टोरी करेंगे. टिल देन यू हैव टू रीड दिस स्टोरी from page number 24 and 25, and afterward we will continue the rest of the story in the next period. Thank you and have a nice day.